morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 2nd, latitudes and longitudes. So dear students, in our previous video we read completely this chapter, and today we will start the revision of this chapter, difficult words and word meanings. So let's start. Dear students, our first difficult word is latitude. 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 Second is longitude. 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 Third is imaginary. 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 Fourth is hemisphere. 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 Fifth है equator. 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 Sixth है direction. 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 Seventh है meridian. 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 Eighth है rotation. Rotation. Ninth है revolution. Revolution. Tenth है international. International. First is latitude. Latitude. Second is longitude. Longitude. Third is imaginary. Imaginary. Fourth is hemisphere. Hemisphere. Fifth is equator. Equator. Sixth is direction. Direction. Seventh is meridian. Meridian. Eighth is rotation. Rotation. Ninth is revolution. Revolution. Tenth है international. International. Our first word meaning is latitude. Latitude. Latitude means akshans. Second is longitude. Longitude. Longitude means deshantra. Third is hemisphere. Hemisphere. Hemisphere means earth goal. Fourth is international. International means अंतर्राष्ट्रीय. Fifth is pole. Pole. Pole means dhruv. Sixth is equator. Equator. Equator means भूमध्य रेखा. Seventh is imaginary. Imaginary means काल्पनिक. Eighth is rotation. Rotation means घूर्णन. Ninth is consecutive. Consecutive. Consecutive means लगातार. और tenth is interactions. Intersection. Interaction means कटाव या प्रतिच्छेदन. First is latitude. Latitude means akshans. Second longitude. Longitude means deshantra. Third is hemisphere. Hemisphere means earth goal. Fourth is international. International means अंतर्राष्ट्रीय. Fifth is pole. Pole means dhruv. Sixth is equator. Equator. Equator means भूमध्य रेखा. Seventh is imaginary. Imaginary means काल्पनिक. Eighth is rotation. Rotation means घूर्णन. Ninth is consecutive. Consecutive means लगातार. Consecutive means लगातार. Tenth is interactions. Interaction means कटाव या प्रतिच्छेदन. So dear students, I hope you understand these word meanings and difficult words. You learn completely these word meaning and difficult word with spelling. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल मैंने आपको कराया था पाठ 7 सच्चा कलाकार। पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसके कुछ प्रश्न मैं करा चुकी थी आपको। आज मैं बाकी बचे प्रश्न आपको कराऊंगी। पहले हम करेंगे शब्दार्थ। शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला। शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला। अर्जित, प्राप्त। आमदनी, कमाई। निगाह, नज़र। मंद मंद, धीमे धीमे।
मंत्रमुग्ध, मोहित, कृति, रचना, अरुणाभ, लाल रंग, जीवंत, जीता जागता, कलाकृति, पेंटिंग। हमारा पहला प्रश्न है, टूटे फूटे सामान को प्रयोग में लाने की बात नेकचंद जी के मन में कैसे आई? टूटे फूटे सामान को प्रयोग में लाने की बात नेकचंद जी के मन में कैसे आई? इसका उत्तर होगा, चीनी मिट्टी के टूटे बर्तनों पर पड़ती लाल रंग की किरणों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। चीनी मिट्टी के टूटे बर्तनों पर पड़ती लाल रंग की किरणों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके मन में टूटे फूटे सामान को प्रयोग में लाने की बात आई। आगे है, नेकचंद जी ने सुनसान स्थान पर पहुंचकर टूटे फूटे टुकड़ों का क्या किया? नेकचंद जी ने सुनसान स्थान पर पहुंचकर टूटे फूटे टुकड़ों का क्या किया? इसका उत्तर होगा, सुनसान जगह पर पहुंचकर उन्होंने उन टुकड़ों को एक शिला पर जमाने का प्रयत्न किया और वे अपने काम में सफल हुए। सुनसान जगह पर पहुंचकर उन्होंने उन टुकड़ों को एक शिला पर जमाने का प्रयत्न किया और वे अपने काम में सफल हुए। आगे है, नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में किस प्रकार के दर्शनीय स्थल का निर्माण किया? नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में किस प्रकार के दर्शनीय स्थल का निर्माण किया? इसका उत्तर है, नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में बेकार व रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों का दर्शनीय स्थल बनाया। नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में बेकार व रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों का दर्शनीय स्थल बनाया। अगला प्रश्न हमारा है, एक बार एक विदेशी पर्यटक ने क्या कहकर उनकी प्रशंसा की? एक बार एक विदेशी पर्यटक ने क्या कहकर उनकी प्रशंसा की? इसका उत्तर होगा, विदेशी पर्यटक ने उनकी प्रशंसा में कहा, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। विदेशी पर्यटक ने उनकी प्रशंसा में कहा, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न कराए। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our chapter 7 complete. Now we start our next chapter, fraction. First of all, what is fraction? When something is divided into equal part, each part is called a fraction. जब हम किसी भी वस्तु को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। अब होता है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है 2/8, 3/8, सब में 8 डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारे डिनोमिनेटर बड़े होते हैं और न्यूमरेटर छोटे होते हैं। आप इसमें ऐसे ध्यान, एक ही डिजिट को ध्यान में रखें, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर से ध्यान रखेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द इक्वल टू द और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब देखो बेटा, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो होती है इम्प्रॉपर, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो होती है प्रॉपर। तो इसमें डिफरेंस को आपने अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल पार्ट एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जब कोई, देखो बेटा, फ्रैक्शन में हमारे पास 2 ही पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब 3 पार्ट होते हैं जिसमें होल पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे हमारे यहाँ पे दिया है 2 and 1/3,
2 हमारा होल पार्ट है, 1/3 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.8. राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. हमारे पास कलर एक फिगर दी हुई है, उसमें कुछ पार्ट में कलर किया हुआ है और कुछ में कलर नहीं किया हुआ. तो क्वेश्चन में पूछे कलर पार्ट की फ्रैक्शन बतानी. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काउंट करना है टोटल कितने पार्ट हैं. तो यहाँ पर कितने टोटल पार्ट है 6. तो हम लाइन लगाएंगे और बिलो में लिखेंगे 6. जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो टोटल होते हैं वो होते हैं डिनोमिनेटर. और कलर कितने में है 3 में, तो 3/6. आप इसको देखो दोनों एक टेबल से कट हो रहे तो हम इसको कट भी कर देंगे 1/2. एज इट इज आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फ्रैक्शन इफ. क्वेश्चन में न्यूमिनेटर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर आपने फ्रैक्शन बनानी है 7/9. एज इट इज इसकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं. फाइंड द यूनिट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन. नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन. हमें यूनिट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जिनके न्यूमिनेटर 1 होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 को सर्कल किया है, 1/8 को, ऐसे आपने और भी यूनिट फ्रैक्शन है उसमें उनको सर्कल कर देना है. चूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज एंड राइट द लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिए 3/7, 8/9, 4/7 एंड 3/11. तो इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन कौन सी है, 3/7 एंड 4/7. क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, 7 और 7 सेम है. ऐसे आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें इसमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था टाइप ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है. इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसको डिनोमिनेटर छोटा होता है. और लाइक मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, होल और फ्रैक्शन. मतलब जैसे इनमें तो 2 डिजिट होते हैं 1 और 2, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में 3 डिजिट होती है 1, 2 एंड 3. तो आप इस तरह से भी इनके पहचान सकते हैं. सो नाउ अवर स्टार्ट. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/9. तो बेटा 9 क्या है, डिनोमिनेटर है और वो बड़ा है तो क्या है, ये प्रॉपर. 7/6 में 6 डिनोमिनेटर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर. 1 एंड 1/11 में 3 डिजिट आ गई तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है. ऐसे ही आपने इसकी रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. बेटा हमने 8/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. सो लेट्स बी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन में. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 8/5. तो हम 8 को बेटा 5 से डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना होता है न्यूमिनेटर को. तो फर्स्ट नंबर पर गया 1 पर 5. अब हम इसको माइनस करेंगे तो 3. तो बेटा ये होता है हमारा Q, ये R और ये D. Q मीन्स क्यूशेंट, R मीन्स रिमाइंडर एंड D फॉर डिविजर. अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है Q, R एंड D. Q जो होता है बेटा वो लाइन के बिल्कुल बीच में आता है, R ऊपर होता है, D नीचे होता है. इसी के अकॉर्डिंग हम अभी मिक्स फ्रैक्शन राइट कर देंगे. मिक्स फ्रैक्शन. तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, ये एक तरह से फॉर्मूला भी है मिक्स फ्रैक्शन राइट करने के लिए, QRD. तो Q हमारे पास 1 है, R हमारे पास 3 एंड 5. अब बेटा आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो मिक्स फ्रैक्शन बनाई है वो ठीक है कि नहीं. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5, 5 में 3 को जोड़े 8, 8/5. तो हमारा क्वेश्चन भी 8/5 था. इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35/8. तो अब हम 35 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 4 जा 32, माइनस किया 0 एंड 3. तो ये 4 हमारा Q है, R एंड ये D. तो हम मिक्स फ्रैक्शन राइट करेंगे अभी. मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला है Q हमारे पास 4, फिर R 3 एंड 8. आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपका आंसर 35/8 आ जाएगा. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ टू वी चेंज फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7 है चेंज द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हमारे पास क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में डिजिट दी हुई है, हमें उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है. सो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंड 2/3. हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स में दिया हुआ. तो बेटा इसके लिए फर्स्ट हम करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 3 एंड जो हमारा न्यूमिनेटर है हम उसको ऐड कर देंगे.
प्लस 2, तो 3 में हमने 3 को प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 9, 9 में हमने 2 को प्लस किया 11, 11/3। जो हमारा 3 है वो हम एज इट इज, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज रहेगा। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 में हमने 2 को ऐड कर देना है 11, 11/3। सो स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब हम इस क्वेश्चन को आपको ओरली करके दिखाएंगे। 10 में हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है, 10 8 जा 80, 80 में हमने 7 को ऐड करना है, तो हमारा आ गया 87/10। तो इस तरह हम मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर एक्सरसाइज 8.1। आपने 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं 1 to 7 तक में आपने सभी को रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8th chapter revision. And now in this class, we will start our chapter 9 revision. Midas Golden Touch. And so students, let's we start its exercise. Exercise on choose the correct option. हमें correct option क्या करने हैं, choose करने हैं। फर्स्ट है King Midas was the king of blank. A. Persia, B. Poland, C. Phrygia and D. Phuket. तो किसके थे, फ्रेगिया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड, किंग मिदास वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैंक। ए गोल्ड, बी डायमंड, सी सिल्वर एंड डी ब्रॉन्ज। तो क्या आ जाएगा, ए गोल्ड। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। थर्ड, the angel had godly blank. A clothes, B face, C positions and D powers. तो क्या आ जाएगा, powers। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। एंड नेक्स्ट है फोर्थ, the angel gave Midas the boon of golden blank. A coins, B palace, C touch and D clothes. तो क्या दिया था, टच। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक्सरसाइज बी, राइट T for true and F for false statements. हमें T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट, मिदास वाज ए पुअर बैगर, फॉल्स। सेकेंड, मिदास रूम वाज फुल ऑफ थिंग्स मेड ऑफ गोल्ड, ट्रू। Third, Midas' touch changed his daughter into a gold statue, true. Fourth, Midas was very depressed because of his boon of golden touch, true. And next, exercise T. Match the words in column E with those in column B. कॉलम ए में कॉलम बी को क्या करना है, मैच। फर्स्ट है रिचेस्ट मैन, मिदास। गॉडली पावर्स, एंजल। थर्ड, शोर्स ऑफ कंफर्ट, मैरीगोल्ड। फोर्थ है हैप्पीनेस,
गुड टू अदर्स। फर्स्ट हमारा किस में मैच हो रहा है? सी में, सेकेंड ए में, थर्ड डी में एंड फोर्थ बी में। And so students, let's we start our exercise E. Part E. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के क्या करने हैं? आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड किंग मिदास लिव? आंसर, King Midas lived in Phrygia, a country of ancient Greek. Question number second, who was seen in the dim light? Answer, an angel was seen in the dim light. Question number third, who was Midas' daughter? Answer, Marigold. Question number 4, what was Midas fond of? Answer, he was very fond of gold. And so students, I hope you will understand this 9 chapter revision, and this revision learn and book in your book and notebook. Thank you and have a nice day.